Welcome back students, standard 10th physics, chapter 10, light reflection and refraction, and we are into the 7th session children now. Okay, in the previous session we saw three important incident rays and how they get reflected from concave mirror as well as convex mirror. Alright children, now we shall see image of an object placed at various position in front of concave mirror. So, first position of the object is at infinity. The object is at infinite distance from the mirror. Second, beyond C, that means beyond center of curvature. Third, at C, that means at center of curvature. Fourth position of object is between C and F, that means between center of curvature and principal focus. Then at F and between F and pole. This is first, yes second, this is third, this one is fourth, this is fifth, and this is sixth. Alright children? Fine. I'll leave the first one. I'll start with the second one, children. Alright? Here is one object. And where we are going to place the object? Beyond C. We are going to place the object beyond C. Here it is. This is object. A, B. It stands erect. Okay. Now, first ray, I am going to draw parallel to principal axis. Alright children, it has to be parallel. From this point A, I am drawing an incident ray parallel to principal axis. After reflection, it passes through principal focus. So let's see, reflected ray, it passes through principal focus. See, I'm putting the arrows showing the direction of incident ray as well as the reflected ray. Second ray, अब कौन सी चुनना चाहोगे, through F या through C? Through F will be more convenient. So I'll take a ray passing through F. Red ray, that is incident ray. Can you see this? This is incident ray traveling towards the surface, passes through F. Alright? After reflection, it's going to propagate parallel. So, अच्छी तरीके से parallel ray draw करो. Now, this is the reflected ray which propagates parallel to the principal axis. Children, ये पॉइंट से निकलने वाली इनफाइनाइट रेज ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होके सब यहां मिलेंगे. ये दो रे जहां रिफ्लेक्ट होके मिलती है, सभी पॉइंट वही मिलते हैं. सो ये पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाली सभी रेज यहां मिलती है. सो वहां इमेज फॉर्म होता है. किसका इमेज? ए का. सो आप ए का इमेज को ए डैश बोलिए. करेक्ट चिल्ड्रन? Have you followed? अब आपकी समझ में आया. बेस ये प्रिंसिपल एक्सिस है. सो ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. नाउ दिस इज इमेज ऑफ बी. उसको हम बी डैश कहेंगे. सो ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? सी चिल्ड्रन, it is inverted, है ना, हेड नीचे आया. सो रियल, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे दे रियली मीट. रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके नहीं मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, जहां मिलते हैं वो रियल रिफ्लेक्टेड रेज है. ओके, सो रियल images are always inverted and you compare the size, that is small. Correct? Real, inverted and small. Small मतलब diminished, ऐसे भी कहते हैं.
So what is the nature of the image formed when object is placed beyond C? Real, inverted and small. This diagram that we have drawn to obtain image when object is placed beyond C is also called ray diagram. इसको रे डायग्राम कहते हैं. क्या कहते हैं? रे डायग्राम. And we draw ray diagram to obtain image so that we can determine the nature of image. So what is the nature of image obtained of object placed beyond C in front of concave mirror? Real, inverted and small. Chaliye. Next, ray diagram. The object is placed at C. Children, object is placed at C. This is A, B. This point AB represents object. This is object. All right. ये object है. And this one is image. All right. So object is placed at center of curvature. अब इमेज पाने के लिए कोई भी दो रे ले लो. फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वही अच्छी रहेगी. सो दिस इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट प्रोपोगेट्स थ्रू एफ, वो एफ से जाएगी. ये रही, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. सेकेंड रे पासिस थ्रू एफ. एफ से पास होने वाली इंसिडेंट रे वो अच्छी रहेगी. सी से तो पास ही नहीं कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू एफ. यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग टू प्रोपोगेट पैरेलल, है कि नहीं. सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रॉपरली ड्रॉ होना चाहिए. ओके, ठीक है. इट इज हियर वेयर द पॉइंट मीट. ओके, तो ये हुआ ए डैश. वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी पर ही आया. ऑलराइट. सो इमेज ऑब्टेन्ड इज हियर. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? यस, दोनों रिफ्लेक्टेड रियली मीट टू गिव द इमेज, सो इट इज रियल. And real images are always inverted. And what about the size? The size is same as the object. Same size. Size of object and size of image is same. एक और चीज हमें यहां लिखनी है. Position of image between C and F. Alright? और position of image at C. Image भी at C ही मिला. Correct children? So we got the nature of image. Nature में real, inverted, same size, and the position of image is at C. Here nature is real, inverted and small size, and the position of image is between C and F. Object मैंने पहले infinity लिया, इसको छोड़ा है, अभी रे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया. फिर beyond C और ऑब्जेक्ट को आगे लिया तो C पे आया. अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ. सो बिटवीन सी एंड एफ. जैसे आप ऑब्जेक्ट नजदीक लाते हैं थोड़ी साइज छोटी करना चिल्ड्रन, बहुत बड़ी साइज मत लेना. दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी. ऑलराइट, इट स्टैंड्स इरेक्ट. फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. First ray parallel to principal axis. Yes, this is incident ray. After reflection, it's going to pass through F. Correct? अच्छी तरह से F में से जाने दो. This is reflected ray. Second ray कौन सी ले? जो F से जा रही है. देखते हैं F से जाने वाली. Yes, F से जाने वाली यहां इंसिडेंट हो रही है, तो यू कैन टेक दैट. दिस इज द इंसिडेंट रे. राइट? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स गोइंग टू प्रोपोगेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छी तरह पैरेलल ड्रॉ करो चिल्ड्रन. ये रही पैरेलल रे. इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दूं ऐसे. ऑलराइट, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली.
Yeah. Okay. They meet here, children. They meet here. So this is your A dash. A dash. All right. Okay. वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये आपको B डैश मिला, इमेज ऑफ B. ऑलराइट. सो और ये डाउनवर्ड, ये हेड नीचे है. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? सो हाउ इज द इमेज? यस, दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियली मीट एंड गिव्स द इमेज. सो रियल और रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. और आप साइज देख लो, साइज इज बिग and big. So what is the nature of image? Real, inverted and big. And what is the position of image? Image कहां मिला? C से दूर. So beyond C. Beyond C. That is the position of image. Right, children? Now we move to number 5. At F. Where are we going to place the object? At F. मैंने बताया जैसे नजदीक लोगे छोटा ऑब्जेक्ट लो, ए बी. ऑलराइट. ए बी रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट हियर. ओके. एंड दिस इज इमेज. फाइन. नाउ फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो फिक्स है ही. फ्रॉम पॉइंट ए, हम पॉइंट ए से ले रहे हैं. हम पॉइंट ए से इंसिडेंट ले रहे हैं क्योंकि उसका इमेज चाहिए टॉप का. Okay, now the ray passing through F. अच्छी तरह F से जाने वाली रे ड्रॉ करिए. So this is reflected ray. अब मजा है चिल्ड्रन. आप A से F से पास करेंगे तो इंसिडेंट ही नहीं होगी. लेकिन चिल्ड्रन देखो, ये A और C को मैंने रूलर से जोड़ दिया और यहां मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. और ये रही इंसिडेंट रे. द सेकंड इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सी. देखो ये रे तो ये से यहां मिरर तक गई, लेकिन आप देख सकते हैं उसको पीछे एक्सटेंड करे तो सी से जा रही है. सो दिस सेकंड इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सी. दैट इज व्हाट यू कैन से. नाउ यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स बैक. देखा, इट मूव्स बैक. तो दोनों ब्लू कलर की रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, दे आर नॉट गोइंग टू मीट. वो यहां मिलेगी नहीं. आप पीछे एक्सटेंड करके देखो, पीछे उसको एक्सटेंड करके देखो तो वो भी तो पैरेलल ही लग रहे. बराबर ड्रॉ कीजिए. They also appear parallel. So neither they are going to meet here nor they are going to meet there. So what you can say? What is the nature of image? जो इमेज मिला ही नहीं उसके बारे में मैं क्या बताऊं? Right? So undefined. The image is undefined. Okay. And what is the position of image? Position of image आप कह सकते हैं कि बहुत दूर वो जाके मिल रहा है. सो एट इंफिनिटी आप बता सकते हैं. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, प्रिंसिपल फोकस, द इमेज में बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हुआ है, जिसने देखा ही नहीं, पता नहीं, उसके बारे में अनडिफाइंड कहो या अनसर्टेन. इमेज इज अनसर्टेन. इज दैट क्लियर टू यू? All right. So moving on to the next one, between F and P. Between F and P. All right. Between F and P को within focal length भी बोलते हैं. Within focal length. Within focal length. जो object is placed within focal length, क्योंकि PF focal length होता है, and we are going to place the object there. मैंने बताया ही है छोटा ड्रॉ करना. दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी. ऑलराइट. फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. बराबर ड्रॉ करना चिल्ड्रन. दिस वे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू एफ.
ये पॉइंट और एफ को बराबर जोड़ो, ये रही अपनी रिफ्लेक्टेड रे। नाउ सेकंड इंसिडेंट रे पासिस थ्रू एफ, आप ये ले सकते हैं ये टॉप और एफ से, और वो पैरेलल जाएगी, लेकिन उससे अच्छी बात है सी वाली, सी से ले लो। सो दिस रे इज इंसिडेंट एंड इट पासिस थ्रू सी, आप देख सकते हैं, राइट? बोलो, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे पासिस बैक थ्रू सी। अभी ये दो रे को देखो आप, दे विल नेवर मीट हियर बट नॉट पैरेलल, सो पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं, लेट्स एक्सटेंड देम बैकवर्ड। अभी ये रे को भी एक्सटेंड करो बैकवर्ड, इसको एक्सटेंड करो बराबर, चिल्ड्रन इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चिल्ड्रन। जो ए था उसका इमेज ए डैश ऊपर मिला, अब प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हेड ऊपर ही रहा और ये है बी डैश, सो दिस इज इमेज, करेक्ट? A dash B dash represents image। और चिल्ड्रन ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिली, उसको एक्सटेंड किया तब मिला, सो ये इमेज रियल नहीं है, दिस इज वर्चुअल इमेज, बिकॉज इमेज इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सटेंडिंग द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड्स, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, मतलब सीधा, हेड ऊपर तो हेड ऊपर। और आप साइज कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट छोटा है, दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एंड इमेज इज बिग, सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिग। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इतना ही कह देंगे, बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। ऑल राइट, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी वो कहां है वो तो पता ही नहीं है, वो कहां है वो पता ही नहीं है, सो व्हाट आई डू, आई विल ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस coming from object at infinite distance. Now this is parallel to principal axis, so it will pass through F. It will pass through F. So this is reflected ray. Children, one ray वो infinite distance से आ रही है, so that ray passes through C and F both, but it passes through C, आप ले लो. So this is the incident ray, it passes through C, infinite distance से आ रही है, so it will move back करेगी. तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, दोनों मिल रहे हैं, they really meet at F. So what is the position of object? Sorry, what is the position of image at F? The image is formed at F. देखो, parallel to principal axis after reflection, ये है reflected ray, passing through center of curvature after reflection, meets here. अब चिल्ड्रन यहां इमेज ड्रॉ कैसे करें? इसलिए थोड़ा मैच फिक्सिंग होगा यहां. आप ये रे मत ड्रॉ करिए, डोंट ड्रॉ दिस रे. ऑलराइट, आई विल इरेज दिस, आई विल इरेज दिस. ओके, आई विल इरेज दिस. चिल्ड्रन, नाउ डू वन थिंग. फिक्सिंग कर रहे हैं ना हम लोग, सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड हियर, अ वेरी स्मॉल वन. हम बता रहे हैं ए डैश बी डैश. ऑलराइट, और जो दो रे हम बता रहे हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, थोड़ा ऑब्लिक ऐसे. दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज ऑब्लिक. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट ए डैश, ए डैश से पास हो रही है.
All right, children, second ray I am going to draw almost parallel. इसी को पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल उसके नीचे ड्रॉ करता हूं. दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे चिल्ड्रन. लेकिन उसका रिफ्लेक्टेड रे यहां से ए डैश से पास होगा. ए डैश है ना चिल्ड्रन, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड दे मीट एट ए डैश. सो ये इमेज फॉर्म हो गया. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? सो व्हाट इज द नेचर? यस, दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है. सो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. और ये तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली बहुत ही स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड means highly small. All right, so these are the various positions of image obtained when objects are placed at infinity, beyond C, at C, between C and F, at F and between F and P. अब जरा स्टडी कीजिए चिल्ड्रन. हाउ इज द इमेज रियल in first case? How is the image real in second case? How is the image real in third case? How is the image real in fourth case? How is the image? It is uncertain. We do not know whether it is real or virtual. And in the sixth case, it is virtual. So when you place the object in front of concave mirror, you will have to see the position of object. Depending upon the position of the object, the image would be real or virtual. All right, virtual कहां मिलता है? Between F and P, मतलब within the focal length. फोकल लेंथ के बीच कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको वर्चुअल मिलेगा और वो साइज भी उसकी बड़ी मिलेगी. आर यू गेटिंग मी? एट एफ रखोगे तो इमेज वुड बी अनसर्टन. बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बियॉन्ड सी और बड़ा. एट एफ, इमेज इज ऑल्सो एट एफ और सेम साइज. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखोगे तो बिटवीन एफ एंड सी विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज और स्मॉल. एंड ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ. इज दैट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? गुड. ऑल राइट चिल्ड्रन, वी जस्ट सॉ हाउ द images are formed when objects are placed at different positions in front of concave mirror. Now we will see the same for convex mirror. So all right children, let's see how convex mirror is going to give you the image. All right, first at infinity, I leave that just now. All right, second beyond C, beyond C. All right, so let me place an object beyond C. Okay, here is C. Beyond C, C से दूर एक ऑब्जेक्ट में रखता हूं बड़ा सा. All right, कॉन्वेक्स मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then I am going to place the object at C. All right, then I am going to place between, oh sorry children, this is beyond C, this one, forget that. यहां beyond C है, देखो beyond C, इसको भूल जाना. ऑलराइट, और ये तो इंफिनिटी है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखाई देगा. नाउ एट C, then between F and C, at F, or between F and P within the focal length. All right, this is object AB, object AB, object AB, सब जगह पे लिख दूं AB. Children, now don't forget, the real center of curvature and focal point are this side, on the other side. All right, chaliye as usual, first ray from this, okay, here yahan from A I'll draw parallel to principal axis.
बराबर पैरेलल लगनी चाहिए, होनी चाहिए, लगनी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज इंसिडेंट रे पैरेलल। चिल्ड्रन अब मुझे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। यू नो वो रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज होगी इस तरफ, लेकिन वो एफ से पास होगी। सो एफ और ये पॉइंट रूलर से जोड़ दूं और ये ड्रॉ करूं रिफ्लेक्टेड रे, ऑलराइट। उसको पीछे में डॉटेड लाइन से ड्रॉ भी कर दूं क्योंकि जरूरत पड़ने वाली ही है, ऑलराइट। चलिए नाउ सेकंड इंसिडेंट रे, इट पासिस थ्रू सी ऑन अदर साइड। चिल्ड्रन इट पास, वो वाला लो, एफ वाला नहीं, सी ऑन अदर साइड। तो सी और ए को रूलर से जोड़ दो और इंसिडेंट रे कहां तक जाएगी? मिरर तक, ऑलराइट, ओके। एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। अब सी और उसको जोड़ो और ये ब्लू रे रिफ्लेक्टेड बैक और उसकी डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर लो विच पासिस थ्रू सी। सो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, विल दे एवर मीट? नो, बट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड यस। तो ये ए था और ये ए डैश है, वहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये बी डैश है। सो हियर द इमेज इज फॉर्म, दिस इज इमेज और ये था ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज चिल्ड्रन हियर? ओके, या ये हेड बता दो, जो यहां हेड बताया वैसा हेड ऊपर बता दो, राइट। सो इट इज, या ये रे डिड नॉट रियली मीट, उसको एक्सटेंड पीछे एक्सटेंड करके बनाया गया। सो इट इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यस। और साइज देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उससे छोटा है, सो स्मॉल। एंड पोजीशन के बारे में क्या कहेंगे? या बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड रे डायग्राम। द ऑब्जेक्ट इज एट सी। चलिए, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां ए से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? वो सी और ये पॉइंट से जोड़ दो रूलर को, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। उसको एक्सटेंड भी कर दो बैकवर्ड क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ही, राइट। ये रिफ्लेक्टेड रे, उसको एक्सटेंड किया। सेकंड रे पासिंग थ्रू एफ, सॉरी सी, बट ऑन द अदर साइड, उसका रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। सो ए और सी को रूलर से जोड़ दो और मिरर तक ले जाओ। यू नो रिफ्लेक्टेड रे पीछे जाएगी इस तरफ, उसको एक्सटेंड भी कर दो, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। दोनों, ये रे तो मिलने वाली नहीं है, बट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड दे मीट हियर। चिल्ड्रन यही तो ए का इमेज है, ए डैश, और ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हेड ऊपर ही है, ये बी डैश है, राइट। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट placed at C in front of convex mirror. Children, okay, बाद में देखते हैं। So how is the image? Yeah, ये पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिला इमेज, so that is virtual, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। और साइज ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करो, स्मॉल। एंड व्हाट इज द पोजीशन? यस, ये भी बिहाइंड द मिरर, behind the mirror. Is that clear to you, children? All right. Now, next we'll see. Yes, the object is between C and F. First incident ray parallel to principal axis. ठीक है. After reflection, you know, it will pass through its real F, but directly नहीं, indirectly. सो एफ और इस पॉइंट को जोड़ दिया और ये रिफ्लेक्टेड रे, और उसको रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड भी ले लिया। ओके, नेक्स्ट रे पासिंग थ्रू सी ऑन अदर साइड,
तो रूलर से सी और ए को जोड़ दो और ये इंसिडेंट रे वो सी से जाती है, लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड जाएगी, फिर से सी और ए को जोड़ दो और ये बैकवर्ड रे बताओ और उसी बैकवर्ड रे को आप सी से डॉटेड लाइन करो. ओके, where they meet here children. The rays from incident rays from A after reflection meet here when extended backward, so that is image of A, we call it A dash. A dash से हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को B डैश कहो और ये भी वही, ये रिफ्लेक्टेड रे really did not meet, only they met when extended backward. Then such image is virtual and virtual images are always erect. और साइज आप कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट से ये स्मॉल ही है. ऑल राइट, एंड व्हाट इज द पोजीशन? या इमेज इज बिहाइंड द मिरर, दैट्स ऑल वी कैन से. इमेज बिहाइंड द मिरर. ऑल राइट चिल्ड्रन, so let's proceed further to the next one. All right, where is the object? At F, first ray parallel to principal axis. After reflection, it will pass through it will pass through F. मैंने गलत लिखा है, ये F है और ये C है. All right, so लेकिन F और ये दो पॉइंट को जोड़ दो और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, उसको एक्सटेंड करना ही है. ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. चलिए नेक्स्ट रे, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सी ऑन अदर साइड. तो यहां से ऐसे ड्रॉ कर लो. ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपको पता है बैकवर्ड, और ये बैकवर्ड भी आप एक्सटेंड कर लो जो सी से जाती है. ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रेड वाली इंसिडेंट रे, ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों मिलने वाली नहीं है. बट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड दे मीट हियर. सो दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए. सो ए डैश, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बी डैश और यही हेड. सो अगेन वर्चुअल, इट्स ऑलवेज इरेक्ट और अभी भी स्मॉल ही है, स्मॉल ही है. करेक्ट. एंड पोजिशन ऑफ image is behind the mirror, behind the mirror. Is that clear children? समझ में आ रहा है? All right. So the next one is this, right? First ray parallel to principal axis. Yes, from point A will take. This is the incident ray. After reflection, it's going to propagate in such a way or diverge in such a way that it passes through F. So this is the reflected ray. उसको extend भी कर देते हैं. Correct? ये reflected ray. Second ray passes through C on other side. तो C और A, ये रे तो यहां तक ही जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी बैक और ये रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड करेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन बहुत कुछ खिचड़ा हो रहा है यहाँ. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे एक्सटेंड करते तो यहां मिलते हैं. एंड दैट इज पॉइंट ए का इमेज. सो ए डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये B dash. So again children, you see nature, it is virtual, erect and small. And what is the position of image? Behind the mirror, behind the mirror. All right children? Okay. Now one more is left, and that is when the object is at infinite distance. वो भी आसान है. चलिए, नाउ दिस इज अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये F और ये पॉइंट को जोड़ दो, इट डाइवर्जेस हियर. करेक्ट. और उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे
तो it will pass through F. The second ray, yes, it comes through, from infinite distance, but it is coming and passing through C on other side. So वो ray ये आ रही है. Alright, it's going to be reflected back, and that reflected ray can be extended which passes through C. Is that clear? ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी, रेड रे इंसिडेंट है और ब्लू रे रिफ्लेक्टेड है. तो ये ब्लू रे रिफ्लेक्टेड है, ये ब्लू रे रिफ्लेक्टेड, दे विल नेवर मीट, बट एक्सटेंड किया तो यहां मिले. ऑलराइट, उसी जगह पे जो ऑब्जेक्ट का ए है वो ए मिला, ए डैश, उसको नीचे से एक्सटेंड करो, ये बी डैश और ये. सो इट इज अगेन वर्चुअल, इरेक्ट and very small, है ना, very small, yeah, small, it is small, smaller than the object, जो object है उससे बहुत small है. And what is the position of image? Behind the mirror. All right children, so now you see, अब देखो, how is the image in the first case? Virtual. Second case, virtual, 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 virtual. So उसका मतलब convex mirror always gives you virtual image, no matter what is the position of object. Object किसी भी position पे हो, image आपको virtual मिलेगा, behind the mirror मिलेगा, और small ही मिल रहा है. देखो, small, 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 small. चिल्ड्रन, कॉनकेव मिरर क्या दे रहा है? देख लो, पोजीशन पे रियल 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 रियल, यहां अनसर्टन और वर्चुअल. ये चिल्ड्रन, कॉनकेव मिरर गिव्स यू वर्चुअल इमेज. कौन सी पोजीशन? बिटवीन एफ एंड पी, विद इन द फोकल लेंथ. करेक्ट. लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज है वो बिग है और यहां के सारे वर्चुअल इमेज स्मॉल है. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? Concave mirror gives you virtual image only in one position, when the object is placed within the focal length, but this image is bigger than the object. एक और चीज यहां ऑब्जर्व करिए, हमने ऑब्जेक्ट दूर रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते गए, मिरर के नजदीक, पहले मिरर से बहुत दूर, मिरर से बियॉन्ड सी, मिरर से सी, मिरर से बिटवीन एफ एंड सी, मिरर से एट एफ, एंड मिरर से बिटवीन एफ एंड पी. तो हमने ऑब्जेक्ट नजदीक लाया, एवरी टाइम वी प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोजर, और इमेज कहां मिला? एट एफ, फिर एफ से दूर, फिर एफ से और दूर, फिर बियॉन्ड सी चला गया. ऑलराइट, यहां अनसर्टन, इसलिए कह सकते हैं बियॉन्ड सी के बाद इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, है ना, और ये तो उल्टा ही हो गया. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Okay, fine. So children, let's have the comparative study of, yes, concave mirror and convex mirror, how the incident rays get reflected from there. Yes, first ray parallel to principal axis. All right, here it is. In case of concave mirror, yes. In case of concave mirror, the ray which is parallel to principal axis passes through its real focal point. Yeah, principal focus, which is on the same side or which is in the front of mirror. But in case of convex mirror, the incident ray which is parallel to principal axis after reflection diverge, and when extended backward, it passes through its real focal point, which is behind the mirror. Is that clear? So here it is, parallel to principal axis from concave mirror, it passes through principal focus. Yeah, parallel to principal axis from convex mirror passes through principal focus when extended backward. Next, passing through principal focus, but the real principal focus. Okay children, I call this as real principal focus for convex mirror, and this as real principal focus for concave mirror. चिल्ड्रन, बुक में ऐसा नहीं लिखा है.
जो रियल है उसको रियल कहेंगे, ऑलराइट, रियल, ओके, और उससे जो बनाया गया है उसको हम क्लोन्ड कहेंगे। चिल्ड्रन, दिस वर्ड आई एम यूजिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा है। सो देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, उसका स्फीयर, ये इसका रियल फोकल पॉइंट, और ये जो है उसको हम क्लोन कहेंगे, ऑलराइट। और कॉन्केव मिरर में रियल फोकल पॉइंट ही है, ओके, क्लोन फोकल पॉइंट हमने लिया ही नहीं है, इस साइड लिया ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ऑलराइट। हमको कॉन्वेक्स मिरर में ही रियल फोकल लेंथ होने के बावजूद हमें क्लोन्ड फोकल लेंथ लेना पड़ता है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दैट साइड, ओके। सो हियर passing through principal focus of real one, that is the second one, all right. Here the one which passes through principal focus, but on the other side real focal point yahan hai, so this red rays passes through f, okay, but after reflection they move parallel. In this case, yes, the incident ray, see, in both it passes through f, real f, and then they propagate parallel. So from concave mirror it passes parallel to principal axis, and also from convex mirror it passes through principal it passes parallel to principal axis. Is that clear? Okay. Now third one, passes through center of curvature. देखो ये पीछे से, कॉन्वेक्स मिरर में रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है और कॉन्केव मिरर में रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। सो द रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव्स बैक, द रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव्स बैक। कॉन्वेक्स मिरर में यहां है द रे विच पासिस थ्रू इट्स रियल सेंटर, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, देखो, राइट, इट मूव्स बैक। इज दैट क्लियर टू यू? सो इट पासिस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑलराइट, इन कॉन्केव मिरर, and it passes back in opposite direction, all right, दोनों opposite direction में जाएंगे, right, all right. Now let's have the comparative study of images that are formed, all right children, okay. Position of object at infinity, beyond C, at C, between F and C, at F, and between F and P. Position and nature of image by concave mirror and position and nature of image by convex mirror. Okay, हम concave mirror का देखेंगे पहले, at infinity, okay, this is concave mirror, at infinity, all right, and where is the image? At principal focus, at F, in front of mirror. And how is the nature of image? It is real, inverted and highly diminished. Real, inverted and highly diminished. Now let's see the object placed at infinity in front of convex mirror. Here is convex mirror. Both this incident ray comes from object at infinite distance. Alright, they meet here when extended backward. So it is virtual, erect and very small. So here the image is formed at F. Children, ये जो है ना children, it is at F. F यही है, ये F जो है वो यही है. So image is formed at F. Here also image is formed at F but in front of the mirror. Here image is also formed at F but behind the mirror. Correct? So it is virtual, erect and very small, highly diminished. Alright. Now let's see beyond C. Beyond C. The position is beyond C. Can you see here? ये C है और C से दूर ये दो इंसिडेंट रे यहां मिलती है. सो बिटवीन F and C and it is real, inverted and small. Correct? Okay. And in case of convex mirror, here is the object beyond C. ये दो इंसिडेंट रे, yes, रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंड करेंगे तो यहां मिलेगा. ये बिटवीन P and F but behind the mirror. So beyond C, it will be between F and C in front of mirror. It is real, inverted and diminished. And here in case of convex mirror, between F and C, behind the mirror,
between F and C, behind the mirror, virtual, erect and diminished. Now at C, all right, this is concave mirror and at C. Yes, red rays are incident rays, blue rays are reflected rays, they meet here. So image is formed at C. Image is also formed at C. And the nature of image, if you look at, it is real, inverted and of the same size. All right. So there it is. At C, the position of image is at C in front of the mirror, real, inverted and of same size. Now let's see for convex mirror. Here is the object placed at C in front of convex mirror. करेक्ट. ये दो रेज इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट हुई, पीछे एक्सटेंड किया, अगेन बिटवीन एफ एंड पी behind the mirror, that is the position, and it is virtual, erect and small. Correct. So here it is between F and C, behind the mirror, virtual, erect and diminished. Is that clear to you? Okay. Now between F and C for concave mirror, here it is between F and C. Object is here between C and F. Yes, incident rays, reflection, they are real emitting. So real, virtual, real, inverted and big. आप देखो अभी size of the object से size of the image big है. Correct? So real, inverted and big. And where is the position? Beyond C. That's it. Between F and C. Beyond C in front of mirror. Real, inverted and of big size. Is that clear? Now let's see for convex mirror. Here between C and F. यहां मिला, it's again between P and F. Between P and F ही है, sorry, between P and F, yeah, between P and F, between P and F. यहां मैंने C लिखा, गलती है. Between P and F. This is all between P and F. Between P and F. All right, children. Yeah, देख लीजिए. ये तो exact, ये between P and F. Between P and F, between P and F, सब देख लो, between P and F, between P and F. The very first one is at F. First one is at F. बाकी के सब between F and P, between F and P, behind the mirror. Correct? Okay. And they are virtual, erect and small. उसको याद रखना बहुत आसान है. इसको देख लो now at F. At F, children, हमने कहा कि दोनों रेस पैरेलल है, दोनों और एक्सटेंड कीजिए, वो नहीं मिलेगी. लेकिन इफ यू हैव स्टडीड अबाउट अर्थ, अर्थ के ऊपर ऐसे क्या है, लॉन्जिट्यूड्स है कि नहीं, और यहां इक्वेटर है. एट इक्वेटर लॉन्जिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. एट इक्वेटर ऑल दिस लॉन्जिट्यूड्स आर पैरेलल. लेकिन एट पोल, ये इक्वेटर है और ये पोल है, एट पोल दे ऑल मीट. सो दिस रेज, दिस लाइंस, लॉन्जिट्यूड्स जिसको कहते हैं, वो इमेजिनरी लाइंस ही है, लॉन्जिट्यूड्स ऑन द अर्थ. एट इक्वेटर दे अपीयर पैरेलल, बट आफ्टर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एट पोल दे मीट. सो सेम लॉजिक चिल्ड्रन इज यूज्ड हियर. ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये ब्लू वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है, आफ्टर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस दे विल मीट. दैट्स व्हाई वी सेड यस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब ये रियल जो रिफ्लेक्टेड रे वो मिलेगी. सो इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, बहुत दूर, सो बहुत बड़ा मिलेगा. वेरी बिग, रियल, इन्वर्टेड तो है ही सही, real, inverted and very big. So instead of saying uncertain, now uncertainty is removed by using logical reasoning. So we can say the image is formed at infinity, it is inverted, real and very big. So here it is at F, at infinity in front of mirror, it's real, inverted and very big in size. Okay. And here it is between F and P, behind the mirror, virtual, erect and diminished. Now between F and P, that is interesting. F और P के बीच in front of the mirror, object यहां रखा, image यहां मिला. So it is virtual, erect and big.
and behind the mirror. उसको सिर्फ कह दिया behind the mirror, virtual, erect and big. I hope you have understood, children. आपको कोई भी रे डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है, so you should be able to draw and you should remember all this. So in case of concave mirror, for different positions of the object, the positions of image are also different. But in case of convex mirror, for different positions of the object, leaving the first one. First one, it is the image is formed at F behind the mirror, and for rest all C or P के बीच, C और P सारे, ये C कॉन्वेक्स मिरर देखना पड़ेगा. ऑलराइट, ये C से स्टार्ट करो और P तक कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, सब P और F के बीच ही आएंगे behind the mirror. Are you getting me, children? So except in infinity distance, for rest of the object positions, the image formed by convex mirror is between F and P behind the mirror, and it is virtual, erect and diminished. All right, children, here we end up the 7th session. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a good day.